بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قرآن مجید کی بے حد دل کو سکون دینے والی سورہ الضحیٰ کا لفظ در لفظ ترجمہ، اس کا شان نزول یعنی نازل ہونے کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اہم سبق جانیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ سمجھے بھی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہمارے چینل عرفین پر قرآن کی سورتوں کے لفظ در لفظ ترجمے، نماز، حدیث اور دین سے جڑے ویڈیو مل جائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا۔ سورہ الضحیٰ قرآن میں 93 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے اس کا شان نزول یعنی اس سورت کے نازل ہونے کا واقعہ۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس دوران مشرکوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان کے رب ان سے ناراض ہو گئے۔ ان سب باتوں کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الضحیٰ ہر مایوس انسان کے لیے امید اور رحمت کا پیغام ہے۔ آئیے اب اس سورت کا لفظ در لفظ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلی آیت ہے والضحیٰ۔ اس میں پہلا لفظ ہے و۔ ویسے تو عام طور پر و کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب قسم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ضحیٰ، جس کا مطلب ہوتا ہے صبح کی روشنی یا چاشت کا وقت۔ اس طرح پہلی آیت کا پورا ترجمہ ہوا قسم ہے صبح کی روشنی کی۔ سورہ الضحیٰ کی دوسری آیت ہے واللیل اذا سجا۔ اس میں پہلا لفظ ہے و، جس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے لیلی، جس کا مطلب ہوتا ہے رات ہوتا ہے۔ لیل تو ہم کئی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، شب قدر۔ اگلا لفظ ہے اذا، جس کا مطلب جب ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے سجا، جس کا مطلب ہوتا ہے چھا جائے ہوتا ہے، یعنی رات پوری چھا جائے۔ اس طرح دوسری آیت کا پورا ترجمہ ہوا اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی ایسی رات کی قسم جب پوری طرح سے وہ قرار پا جائے۔ سورہ الضحیٰ کی تیسری آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ اس میں پہلا لفظ ہے ما، جس کا یہاں مطلب ہے نہیں۔ اگلا لفظ ہے ودعک، جس کو ہم ودا یعنی چھوڑنا سے سمجھ سکتے ہیں، اور بعد میں کا لگنے سے اس کا پورا مطلب ہوا چھوڑ دیا آپ کو۔ اگلا لفظ ہے ربک، یہ لفظ رب سے بنا اور بعد میں کا لگنے سے اس کا پورا مطلب ہوا آپ کے رب نے۔ اگلا لفظ ہے و، جس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ما، جس کا یہاں مطلب ہوا نہیں۔ اگلا لفظ ہے قلا، جس کا یہاں مطلب ہے ناراض ہوا۔ اس طرح تیسری آیت کا پورا ترجمہ ہوا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ سورہ الضحیٰ کی چوتھی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس میں پہلا لفظ ہے و، جس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے آخرتو، جس کا مطلب آخرت ہوتا ہے، یعنی آخر میں آنے والی، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ اگلا لفظ ہے خیر لک، یہ لفظ خیر سے بنا ہے، جس کا مطلب بہتر ہوتا ہے، اور بعد میں ل اور کا لگنے سے اس کا پورا مطلب ہوا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگلا لفظ ہے من، جس کا مطلب سے ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اولا، اس لفظ کا مطلب دوسرے کے مقابلے پہلے والا ہوتا ہے، اور یہاں آخرت کے پہلے والی زندگی سے مراد ہے، یعنی دنیاوی زندگی۔ اس طرح چوتھی آیت کا پورا ترجمہ ہوا اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیاوی زندگی سے۔ سورہ الضحیٰ کی 5ویں آیت ہے وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ۔ اس میں پہلا لفظ ہے وا، جس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے لسوفا، اس میں سوفا کا مطلب ہوتا ہے عنقریب، اور پہلے لا لگا ہونے سے اس کا مطلب ہوا البتہ تحقیق عنقریب۔ اگلا لفظ ہے یوتی کا، یہ لفظ عطا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہم سب جانتے ہی ہیں، اور بعد میں کا لگنے سے اس کا پورا مطلب ہوا آپ کے عطا کرے گا۔ اگلا لفظ ہے ربو کا، یہ لفظ رب سے بنا اور بعد میں کا لگنے سے اس کا پورا مطلب ہوا آپ کا رب۔ اگلا لفظ ہے فترزا، یہ لفظ رضا سے بنا یعنی راضی ہونا، اور اس لفظ کے پہلے میں ف لگا ہوا ہے، جس کا مطلب تو ہوتا ہے۔ دونوں کو ملا کر مطلب ہوا تو آپ راضی ہو جائیں گے یا خوش ہو جائیں گے۔
इस तरह 5वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे यानी खुश हो जाएंगे। सूरह अज़्ज़ुहा की 6वीं आयत है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। इसमें पहला लफ्ज़ है अलम, इसमें 2 लफ्ज़ हैं, आ का मतलब क्या होता है और लम का मतलब नहीं होता है। इस तरह से पूरे लफ्ज़ का मतलब है क्या नहीं। अगला लफ्ज़ है यजिद का। इस लफ्ज़ में यजिद को हम मौजूद पाना से समझ सकते हैं और बाद में का लगने से इसका पूरा मतलब हुआ आपको पाया। अगला लफ्ज़ है यतीमन। इसका मतलब तो हम सब समझते ही हैं, यानी जिसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है आवा, जिसका मतलब ठिकाना होता है, यानी घर वगैरह का सहारा। इस तरह 6वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ क्या आपको यतीम नहीं पाया तो आपको ठिकाना दिया। सूरह अज़्ज़ुहा की 7वीं आयत है ववजद का ज़ाल्लन फ़हदा। इसमें पहला लफ्ज़ है वा, जिसका मतलब और होता है। अगला लफ्ज़ है वजद का। इस लफ्ज़ को मौजूद पाना से समझ सकते हैं और बाद में का लगने से इसका पूरा मतलब हुआ आपको पाया। अगला लफ्ज़ है ज़ाल्लन। इस लफ्ज़ का यहाँ मतलब है बेखबर। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है हदा। इस लफ्ज़ को हम हिदायत से समझ सकते हैं, यहाँ मतलब है आपको हिदायत दी यानी बाखबर कर दिया। इस तरह 7वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ और आपको शरीयत से बेखबर पाया तो बाखबर कर दिया। सूरह अज़्ज़ुहा की 8वीं आयत है ववजद का आयलन फ़अग़ना। इसमें पहला लफ्ज़ है वा, जिसका मतलब और होता है। अगला लफ्ज़ है वजद का। इस लफ्ज़ को मौजूद पाना से समझ सकते हैं और बाद में का लगने से इसका पूरा मतलब हुआ आपको पाया। अगला लफ्ज़ है आयलन। इस लफ्ज़ को हम अयाल से समझ सकते हैं जो उस घर के मुखिया पर डिपेंड होते हैं। यहाँ इस लफ्ज़ से मुराद मुफलिस से है। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है अगना। इस लफ्ज़ को हम गनी से समझ सकते हैं, यहाँ मतलब है आपको गनी कर दिया यानी मालदार कर दिया। इस तरह 8वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ और आपको मुफलिस पाया तो मालदार कर दिया। सूरह अज़्ज़ुहा की 9वीं आयत है फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। इसमें पहला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है अम्मा। इस लफ्ज़ का मतलब होता है बहरहाल या कुछ भी हो जाए। अगला लफ्ज़ है यतीम, जिसका मतलब यतीम हम सब जानते ही हैं। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है ला, जिसका मतलब नहीं होता है। अगला लफ्ज़ है तक़हर, जिसे हम कहर यानी सख्ती करना से समझ सकते हैं। यहाँ मतलब हुआ कहर या सख्ती करें। इस तरह 9वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ तो बहरहाल जो यतीम हो तो उस पर सख्ती ना करें। सूरह अज़्ज़ुहा की 10वीं आयत है व अम्मा साइला फ़ला तनहर। इसमें पहला लफ्ज़ है वा, जिसका मतलब और होता है। अगला लफ्ज़ है अम्मा। इस लफ्ज़ का मतलब होता है बहरहाल या कुछ भी हो जाए। अगला लफ्ज़ है साइल। इस लफ्ज़ को हम सवाल से समझ सकते हैं, यहाँ मतलब है सवाल करने वाला या मांगने वाला यानी भिखारी। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है ला, जिसका मतलब नहीं होता है। अगला लफ्ज़ है तनहर। इस लफ्ज़ का मतलब होता है झिड़कें। इस तरह 10वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ और बहरहाल जो सवाल करने वाला हो या भिखारी हो तो उसे झिड़के नहीं। सूरह अज़्ज़ुहा की 11वीं आयत है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इसमें पहला लफ्ज़ है वा, जिसका मतलब और होता है। अगला लफ्ज़ है अम्मा। इस लफ्ज़ का मतलब होता है बहरहाल या कुछ भी हो जाए। अगला लफ्ज़ है बिनिअमति। इस लफ्ज़ को नेमत से समझ सकते हैं और पहले बी लगने से इसका पूरा मतलब हुआ नेमत के साथ। अगला लफ्ज़ है रब्बुका। ये लफ्ज़ रब से बना और बाद में का लगने से इसका पूरा मतलब हुआ अपने रब की। अगला लफ्ज़ है फ़, जिसका मतलब तो होता है। अगला लफ्ज़ है हद्दिस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात हैं, यहाँ मतलब है बयान करें। इस तरह 11वीं आयत का पूरा तर्जुमा हुआ और बहरहाल अपने रब की नेमतों को बयान करें। इस तरह से सूरह अज़्ज़ुहा का पूरा तर्जुमा हुआ कसम है सुबह की रोशनी की और रात की जब वो छा जाए, यानी ऐसी रात की कसम जब पूरी तरह से वो करार पा जाए। ना आपके रब ने आपको छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ, और आपके लिए आखिरत बेहतर है दुनियावी ज़िंदगी से, और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे यानी खुश हो जाएंगे। क्या आपको यतीम नहीं पाया तो आपको ठिकाना दिया, और आपको शरीयत से बेखबर पाया तो बाखबर कर दिया, और आपको मुफलिस पाया तो मालदार कर दिया। तो बहरहाल जो यतीम हो तो उस पर सख्ती ना करें, और बहरहाल जो सवाल करने वाला हो या भिखारी हो तो उसे झिड़के नहीं, और बहरहाल अपने रब की नेमतों को बयान करें। आइए अब जानते हैं सूरह ज़ुहा से मिलने वाले कुछ इल्मी नुकात के बारे में। इस सूरत में अल्लाह ताला ने रात की तारीकी की कसम खाई, जो एक अलामत है कि जिसमें इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, जिससे वही का रुक जाना मुराद है।
और सुबह की रोशनी की भी कसम खाई जो रात के अंधेरे को फाड़ कर आती है, जिससे वही का फिर से आ जाना मुराद है। अल्लाह ताला ने बताया कि आजमाइश आती रहती हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 हालात बताए और फिर 3 नेमतें बताईं और फिर नेमतों के मिलने पर 3 काम बताए। पहला, यतीम पाया तो ठिकाना दिया, इसलिए यतीमों पर सख्ती ना करें। दूसरा, शरीयत से बेखबर पाया तो बाखबर कर दिया, इसलिए कोई भी सवाल मसला इल्म की बात पूछने आए तो उसे झड़के नहीं। तीसरा, मिस्कीन मुफलिस पाया तो मालदार कर दिया, इसलिए कोई भी भिखारी आए तो उसे झड़के नहीं। आइए अब जानते हैं सूरह ज़ुहा से मिलने वाले सबक के बारे में। पहला सबक, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अगर कभी हालात ख़राब हों तो मायूस ना हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। दूसरा सबक, आखिरत की तैयारी दुनिया से ज़्यादा अहम है। तीसरा सबक, अल्लाह की नेमतों को याद करने से दिल में शुक्र पैदा होता है और उम्मीद बढ़ती है। चौथा सबक, यतीमों के साथ रहमत और मोहब्बत के साथ पेश आएं। पांचवा सबक, मदद मांगने वाले को झिड़कना डांटना नहीं चाहिए। अगर मदद ना कर सकें तो भी नरमी से बात करें और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहें। छठा सबक, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और उन्हें लोगों के सामने तकब्बुर यानी घमंड के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तारीफ हम्द और शुक्र के तौर पर बयान करें। दोस्तों, इस सूरत से और भी बहुत से सबक मिलते हैं। सूरह अज़्ज़ुहा हमें सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, मोमिन को कभी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं तो इस सूरह को पढ़िए, उसका मतलब समझिए और यकीन रखिए कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।